Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, इनके द्वारा प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा भी एक सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया. करेक्ट, ये एक सी केयर्स बेसिकली जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका एम क्या रहेगा कि जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी काम किया जा रहा है उसको डिजिटाइज कर दें हम. राइट, तो मेन एम क्या रहेगा कि जो भी प्रोसेस है, वर्क प्रोसेस है, जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव किए जाते हैं ऑफ CMPFO. CMPFO क्या है? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वर्क प्रोसेसेस हैं, उसको डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पे ये सी केयर्स पोर्टल को भी लॉन्च किया गया. राइट, मार्क करके चलेंगे पहली चीज़. फिर इसी के बारे में सी पेयर्स के बारे में बात करें या फिर CMPFO. CMPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है, एंड मैनुअली प्रोसेसेस द सेटलमेंट क्लेम्स ऑफ प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स एंड पेंशन. तो अब इसको डिजिटाइज कर दिया गया, पहले जो मैनुअली होता था. ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है बाय CDAC, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, MEITY के अंडर आता है. एंड ये जो पोर्टल है कैन बी लॉग्ड इन बाय बोथ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स एंड कोल कंपनीज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है किन्होंने लॉन्च किया. हु लॉन्च्ड 2 डिजिटल मॉड्यूल्स विद इन सागर सेतु. 2 डिजिटल मॉड्यूल्स को यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया सागर सेतु के अंदर. किनके द्वारा? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा. ये जो 2 मॉड्यूल्स की बात की जा रही है, एक तो है MSW मॉड्यूल और दूसरा है MMD मॉड्यूल. ये 2 मॉड्यूल्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है. इनके बारे में भी देखते हैं. करेक्ट, आप सबसे पहले देखिए सरबंदना सोनोवाल जी पिक्चर में 2 मॉड्यूल्स लॉन्च किए गए. पहला है मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल और दूसरा है मर्सेंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट मॉड्यूल. विद इन सागर सेतु इनको लॉन्च किया गया नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम प्लेटफॉर्म के अंडर टू ट्रांसफॉर्म एंड मॉडर्नाइज द इंडियन पोर्ट्स. यहीं पे देखें MSW मॉड्यूल, ये कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट इज डिजाइन टू डिजिटलाइज द एक्सचेंज ऑफ मैरीटाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. एंड ये जो MSW पोर्टल है ये हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को टू अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाते हैं बाय IMO. राइट, एंड दिस विल रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर वेसल्स एंड गुड्स इन द पोर्ट्स बाय अप टू 40%. नेक्स्ट आ जाता है फिर MMD मॉड्यूल. ये MMD मॉड्यूल का काम क्या रहेगा? ये बेसिकली आपका मैरीटाइम मोबाइल डोमेन प्रोसेस. यहाँ पर जो आपके शिप्स जो पोर्ट्स पर आके डॉक करते हैं, राइट, उनका पूरा डाटा मेंटेन किया जाएगा. राइट, कब आ रहे हैं, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो भी वेसल्स की हम अगर इनकी सफाई करना चाहें, राइट, इनकी मेंटेनेंस करना चाहें तो उसका भी मॉनिटरिंग हो सकती है. फिर कितने बजे ये जाएगा तो उससे पहले हमें सारा डाटा को रिकॉर्ड करना होगा, सारा जो गुड्स है उसको लोड करना होगा. तो उस सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा अंडर दिस MMD मॉड्यूल.
ठीक है, तो ये 2 मॉड्यूल यहाँ पे याद रखेंगे। फिर इसके द्वारा याद रखेंगे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स। ये स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑर्गेनाइजेशन को टू रिकॉग्नाइज देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। यहीं पर अगर बात करें स्वच्छता पखवाड़ा, ये क्लीनलीनेस कैंपेन था, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक हुआ 2023 में एंड विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ 62 इवेंट्स। यहीं पे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पे विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हु को चेयर 12th इंडिया ओमान जॉइंट मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी। तो ये जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी अभी 12th एडिशन था इस इंडिया और ओमान मीटिंग के बीच का, किसके द्वारा चेयर की गई, को चेयर की गई गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। तो इंडिया से कौन डेलीगेशन थे जिन्होंने चेयर किया या इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, वो है श्री गिरिधर अरमाने जी। ये कौन है, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। गिरिधर अरमाने जी 2 डे लॉन्ग विजिट पे थे टू ओमान ऑन 30th एंड 31st ऑफ जनवरी एंड यहाँ पर इन्होंने हमने देखा कि कई MOUs भी साइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राइट। एंड यहीं पर हम देखेंगे इन दोनों इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिविजुअल्स को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, करेक्ट। जॉइंट एक्सरसाइजेस कराने की बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिफेंस कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर GRSC, मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। GRSC ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके साइन किया एक फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स। तो GRSC ने रॉल्स रॉयस के साथ यहाँ पर अभी टाई अप किया है ताकि प्रोड्यूस कर सके, साइन किया गया अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स को। पहली चीज़ याद रखेंगे ये, राइट। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, रॉल्स रॉयस ने ही दूसरा जो एक डील साइन करी वो है आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ। और ये जो दूसरी डील साइन की गई है ये 7 साल की डील साइन की गई है, करेक्ट। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी एंड रॉल्स रॉयस ने GRSC के साथ टाई अप किया टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स, और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ टाई अप किया ताकि कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन्स कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रॉल्स रॉयस 7 साल की डील विद आज़ाद इंजीनियरिंग फॉर कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जय शाह इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर विच टर्म। तो ये इनका 3rd टर्म रहेगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, करेक्ट। एक चीज़ और, जय शाह ये कौन है, ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ BCCI, करेक्ट। जय शाह सेक्रेटरी हैं टू द बोर्ड ऑफ BCCI एंड इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द 3rd टर्म। नेक्स्ट आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जय शाह ये अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। मूविंग ऑन, किस बॉलीवुड एक्टर या विच बॉलीवुड एक्टर बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट हम जानते हैं स्मार्ट वेरेबल्स ब्रांड है आपका, यहाँ पर आप इसमें आपके स्मार्ट वॉचेस, देन आपके ईयरबड्स, ईयरफोन्स, हेडसेट्स, ये सब आ जाते हैं। तो अभी रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, राइट, नॉट रणबीर, रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बोट ब्रांड का। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम डेवलप्ड अंडर द DRDO TDF क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, राइट। DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर एक ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम डेवलप किया गया टू डेमोन्स्ट्रेट द इन ऑर्बिट फंक्शनैलिटी। इसको PSLV C58 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया एंड ये जो प्रोजेक्ट है 1S क्लास ग्रीन मोनोप्रोपोलेंट थ्रस्टर है, जिसका एम रहेगा कि हम ऑर्बिट में मेंटेनेंस कर सकें ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स एंड इसको बेंगलोर कर्नाटक से लॉन्च किया गया था एंड ये बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था ग्रीन प्रपोल्शन सिस्टम। इनका मेन एम क्या था बेसिकली कि हम ऑर्बिट में जाके जो मिनी सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे रिपेयर कर सके, ठीक है।
एंड जो ये ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है, ग्रीन प्रोपल्शन का मतलब ही आ जाता है कि ये एक इको फ्रेंडली होगा एंड जब भी हम इसको बर्न करेंगे ये नॉन टॉक्सिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोपल्शन रहेगा फॉर लो ऑर्बिट स्पेस एंड कोई भी यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंट के ऊपर। तो अभी 2 नई स्पीशीज ऑफ कॉन्ग्रिड ईल्स यहाँ पे डिस्कवर की गई एंड कहाँ पर, तमिलनाडु एंड केरला में ये 2 कॉन्ग्रिड ईल्स की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ICAR के आर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा ये डिस्कवर की गई इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका 2 नई स्पीशीज ऑफ ईल। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला था? तो 6th एडिशन हमें देखने को मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। किसके द्वारा होस्ट किया गया? किस स्टेट ने होस्ट किया? तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया था। मेडल टैली में कौन सी स्टेट ने टॉप किया? महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स। 158 में से 57 गोल्ड, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज रहेगा। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाता है हरियाणा इन द मेडल टैली। करेक्ट। यहाँ पे एक मैस्कॉट याद रखेंगे, इसका मैस्कॉट का नाम था वीरा मंगाई। वीरा मंगाई ये आपका मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन का, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। राइट। एक और चीज़ याद रखेंगे, ये 19 से लेके 31 जनवरी तक हुए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने फिनिश किया सेकंड, इनका सिल्वर मेडल आया। ये रनर अप रहे कहाँ पर? FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप में। आई रिपीट, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन्हें ये रनर अप रहे, सिल्वर मेडल रहा इन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 आफ्टर लूजिंग टू नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड की यहाँ पे क्या रही? फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। इन्होंने जीत लिया है FIH 5S वीमेंस वर्ल्ड कप, करेक्ट, जो कि 24 से 31 तक हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन है उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लेनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट याद रखेंगे विंस्ट्रॉन क्या है? बेसिकली विंस्ट्रॉन एक आपकी ताइवान बेस्ड कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ताकि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जा सके नियर बेंगलोर। 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे अंडर दिस MOU ताकि एक प्लांट सेटअप किया जाए नियर बेंगलोर जहाँ पर आपके लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड जो ये लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होंगे 50% ऑफ द लैपटॉप्स यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए यहाँ पे लैपटॉप्स को डेवलप किया जाएगा। IoT डिवाइस भी डेवलप किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। एंड जो प्लांट है इसका काम जुलाई 2024 में हो जाएगा और जनवरी 2026 तक यहाँ पे लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं नागालैंड ने अभी 4th एडिशन ऑब्जर्व किया एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का। राइट। अभी एनुअल ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया जिसका 4था एडिशन था। कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया? रुसोमा विलेज नियर कोहिमा इन नागालैंड। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का 4था एडिशन था, नागालैंड ने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा 4th एडिशन ऑफ छिलिका बर्ड फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया। 27 से 29 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है ये नेशनल छिलिका बर्ड फेस्टिवल। करेक्ट। छिलिका लेक पे जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड छिलिका एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई एक वन लाइनर रिवीजन पे।
प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया सी केयर्स पोर्टल ताकि सब कुछ डिजिटाइज किया जा सके, जो प्रोसेसेस हैं वो डिजिटाइज किया जा सके ऑफ CMPFO। सरबंदना सोनोवाल ने लॉन्च किया 2 डिजिटल मॉड्यूल्स को विद इन सागर सेतु। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने इन्होंने को चेयर किया 12th इंडिया ओमान GMCC मीटिंग को। GRSE एंड रॉल्स रॉयस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन। जय शाह को रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द 3rd टर्म। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह became the brand ambassador of boat. Green propulsion system developed under DRDO TDF scheme demonstrate in-orbit functionality. ICAR के आर्म NBFGR ने डिस्कवर किया 2 नई स्पीशीज ऑफ कॉन्क्रीट कहाँ पर, तमिलनाडु एंड केरला में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा एडिशन हुआ था, तमिलनाडु के द्वारा होस्ट किया गया था एंड महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया वर्ल्ड विद 158 मेडल्स। देन इंडिया ने फिनिश किया एज अ रनर अप। इंडिया की वीमेंस हॉकी टीम ने फिनिश किया एज अ रनर अप इन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप और नीदरलैंड ने यहाँ पे टॉप पोजीशन सिक्योर की। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। विंस्टॉन एंड कर्नाटका इन दोनों के बीच में एक MOU सेटअप किया गया ताकि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा सके नियर बेंगलोर। एंड नागालैंड ने सेलिब्रेट किया 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया 4th नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल को। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट लाया जा सके। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर रंजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ डैश बैंक। तो याद रखेंगे RBI ने अभी चंद्रशेखर रंजन की अपॉइंटमेंट अप्रूव करी है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। मार्क करेंगे, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के ये बन गए हैं नए पार्ट टाइम चेयरमैन। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये प्रकाश आप्टे इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया ओसाइरस एपेक्स, जो कि है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। ये और ओसाइरस एपेक्स ये बेसिकली मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि 2029 में एक एस्ट्रॉयड अर्थ के साथ से फ्लाई ऑफ करेगा, राइट, फ्लाई बाय करेगा। तो उस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था और उस एस्ट्रॉयड का नाम रहेगा अपोफिस, राइट। तो याद रखेंगे अपोफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए जो 2029 में फ्लाई बाय करेगा अर्थ से, उसको स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम रहेगा ओसाइरस एपेक्स। नेक्स्ट, अभी एक फ्रेंच पॉलिटिशियन डैश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन 1985 से 1995 के बीच में इनका निधन हो गया। तो क्या नाम रहेगा उनका, वो है जैक्स डेलोर्स, राइट। ये वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के 1985 से 1995 के बीच में जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन पेरिस, फ्रांस। विच IIT कोलैबोरेटेड विद रिलायंस जियो टू डेवलप भारत GPT, जो कि एक जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम रहेगा, राइट, सिमिलर टू दैट ऑफ अ चैट GPT। तो ये भारत GPT लॉन्च करने की बात की गई। यहाँ पे IIT बॉम्बे ने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया ताकि इस भारत GPT को डेवलप किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ और एक चीज़ याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट्स में प्रमोट करने के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें एंड अपना फ्यूचर इन सब्जेक्ट्स में बनाएं। इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, आरोहण स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। तो इस आरोहण स्कीम के अंडर IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ टाई अप किया ताकि स्टेम सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब कब, तो पहली बार वर्ल्ड में 2023 में ये UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया गया, 31 दिसंबर 2023 को पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है विद रिस्पेक्ट टू 5th लीड्स सर्वे रिपोर्ट, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर 2023 में। तो ये 5th लीड्स रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। 13 स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें से 11 स्टेट्स और 2 यूटीज, इनको कैटेगराइज किया है एंड हैव बीन नेम्ड एज अचीवर्स इन द लीड्स सर्वे रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, they are categorized as achievers among the coastal states in this fifth lead survey report, and हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी इनको कैटेगराइज किया अचीवर्स एट द इन द अमंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स अंडर दिस फिफ्थ लीड सर्वे रिपोर्ट। तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, राइट, टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन्स टोटलिंग अमाउंट कितना 415,301 Japanese yen for the construction of Mumbai Ahmedabad high speed rail as well as sustainable development goals in India। तो दो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जिसमें हम देखेंगे ऑलमोस्ट 400,000 जैपनीज येन यूज किए जाएंगे, और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, इसमें बचा हुआ अमाउंट 15,301 जैपनीज येन को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज recently been appointed as the first ever global brand ambassador of Bisleri International Private Limited। तो बिस्लरी क्या है हम जानते हैं, ये एक वाटर बॉटल ब्रांड है, पानी मिलता है, करेक्ट। तो बिस्लरी ब्रांड की अभी रिसेंटली कौन बनी है नई ब्रांड एम्बेसडर, वो है दीपिका पादुकोण। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय सेबी इन दिसंबर 2022, अगर दिसंबर 2023 अगर देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी ने नोटिफाई किया अ प्रोसीजर फॉर द पब्लिक इशुएंस ऑफ ZCZP जो कि है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टिंग ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल सही। NPO वाया लेड मैनेजर सबमिट्स द ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर्ड SSC with specified fees and an application for in principle approval, and the draft document is posted on both SSC and organization's website for a minimum of 20 days for public comments, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है सेबी ने अलाउ किया स्टॉक ब्रोकर्स टू सेटल देयर क्लाइंट्स फंड्स लाइंग इन द ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन सैटरडेज, दैट इज ऑन वन मोर डे इज प्रोवाइडेड फॉर द सेटलमेंट। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि रिलीज की गई दिसंबर 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विल नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो याद रखेंगे SBI एंड HDFC बैंक, इन दोनों को यहाँ पर हायर कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, इन दिसंबर डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो CISF की अभी रिसेंटली कौन वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, वो है नीना सिंह, पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। फिर अनीश दयाल सिंह, याद रखेंगे अनीश दयाल सिंह, इनको यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ राहुल रसगोत्रा, ये बनाए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ठीक है, मार्क करेंगे। ठीक है, तो 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज अस्त्रा शक्ति 2023 जो दिसंबर में हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों आपके ठीक रहेंगे, ए गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ना एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में हुई, ओडिशा में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। अब आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक रहेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी कह रहा है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया आकाश वेपन सिस्टम को जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, बिल्कुल सही। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर फिर टेस्ट फायर किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जो कि एंगेज कर सकता है एरियल थ्रेट्स विद अ स्पीड रेंज ऑफ 2 to 2.5 मैक। तो तीनों ऑप्शन अब यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बाय डिफीटिंग राजस्थान मैन क्रिकेट टीम इन द फाइनल। सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से होती है? ये क्रिकेट से होती है। ठीक, कौन सा एडिशन हुआ था अभी विजय हजारे ट्रॉफी का? 21st एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। 23 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में था। 38 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और टोटल 135 मैचेस खेले गए थे। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है इस बार राजस्थान को फाइनल्स में हरा के। तो हरियाणा के द्वारा, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हरियाणा के द्वारा यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली गई है राजस्थान टीम को फाइनल में हराकर।
Next, according to Migration and Development Brief 39, leveraging diaspora finances for private capital mobilization, released by World Bank in December, Dash country has topped the remittance chart with an estimated inward remittance flow of $125 billion. तो देखो, इनवर्ड रेमिटेंस होता है एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस. इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब पैसा दुनिया से हमारे इंडिया में आ रहा हो, तो ये हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंस. आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया का पैसा दूसरी कंट्रीज में बाहर जा रहा हो. तो अभी इंडिया ने टॉप किया है इनवर्ड रेमिटेंस में. $125 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस हमें देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में. फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस एंड यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा. इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल 2025. पहले रशिया ने बोला था कि हम 2024 में एग्जिट कर देंगे इस कोलैबोरेशन को बिटवीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज. तो यहाँ पे रशिया ने एग्जिट करने की बात की थी आईएसएस से, लेकिन अब वापस से हम देख रहे हैं ये कोलैबोरेशन एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक. नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज्ड एज वन नेशन वन पास सिस्टम. इससे जो इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी. जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है इसकी, वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है. करेक्ट. तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था. एंड जैसे मैंने बताया, इससे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे टिम्बर का, बैम्बू का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अक्रॉस इंडिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा. लॉजिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है. नेक्स्ट आ जाते हैं डीईए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम. 8% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, ये 8.2% कर दिया गया है फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024, फिस्कल ईयर 2024. तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा. नेक्स्ट है आरबीआई. इन्होंने रिवाइज किया पीआईडीएफ स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को. इसके अंदर आपने देखा होगा हर दुकान पे आपके बारकोड के साथ साथ एक साउंड बॉक्स लगा होता है, राइट. वो साउंड बॉक्स क्या काम का होता है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका ऑनर है उनको पता लग जाए कि आपने पेमेंट कर दिया, एंड वो वॉइस करता है. तो ऐसे साउंड बॉक्स को लगाने के लिए ना सरकार इंसेंटिव्स देती है, सरकार ही यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है. तो ये है आपकी पीआईडीएफ स्कीम. करेक्ट. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकें, सरकार के द्वारा ये कुछ यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने रिवाइज की पीआईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, राइट, एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल डैश. तो डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दिया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023. तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ठीक रहेगा. ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप नहीं किया मेडल टैली में, बल्कि हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ. ये इनॉग्रल एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, न्यू दिल्ली में हुआ था और हरियाणा ने टॉप कर लिया. शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द ओपन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आर्चरी इवेंट. फिर भाविना पटेल गुजरात की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ द क्लास 4 टेबल टेनिस इवेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया have recently won the FIH का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड FIH का वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल. तो अगर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल की मैं बात करूं वो रहेंगे हार्दिक सिंह. वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की मैं बात करूंगा तो वो रहेंगी सविता पूनिया. तो ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही रहेगा. किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5,336 करोड़ रुपए का. किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, राइट. और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखेंगे, ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को वो करेगी पुणे महाराष्ट्र में. एंड इसी के साथ साथ एक नागपुर में भी प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों जगह पर ही आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं?
तो कौन बने अब 14th चीफ मिनिस्टर? वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा किन को रिप्लेस करेंगे? तो ये अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के। किस बैंक ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फॉर द प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए? तो तमिलनाडु के क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अभी 300 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया है। किस बैंक के द्वारा? तो ये लोन मिलेगा इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो, हमेशा याद रखना, अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक देगा। IMF पैसा देगा जब आपको कहीं से लोन चुकाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनवेल किया लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। तो ये 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट रहेगा उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या रहेगा? वो है वीरा मंगाई। राइट, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया 6ठा एडिशन रहेगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और कहाँ पर होंगे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स? चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज पास्ड अवे। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज पास्ड अवे, क्या नाम रहेगा उनका? वो है रॉबर्ट मैटॉन सोलो। राइट, ये वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो 1987 में जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया, कितनी जापानीज येन का? टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करने के लिए अभी कितना अमाउंट यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो अमाउंट रहेगा ये आपका 37 बिलियन जापानीज येन। इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आ जाता है $250 मिलियन। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब्दुल फतेह LCC, इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द 3rd टर्म, तीसरी टर्म के लिए इनको यहाँ पे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कितने अमाउंट का? विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ये 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल पूछा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मडगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने अमाउंट का ये टाई अप साइन किया, कितने अमाउंट का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो याद रखेंगे अमाउंट रहेगी 1614.89 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो ने अभी 9th एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर इट्स डैश मिशन। सो चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी इसरो ने यहाँ पर 9वां एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया है। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 17वें एमिर कौन अपॉइंट किए गए हैं? कुवैत के। हु हैज बीन स्worn इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत? तो वो रहेंगे शेख मशल अल अहमद अल ज़ुबैर अल सबा। ये 17वें एमिर किंग अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ ब्लैक क्राउन नाइट हिरॉन, जो कि अभी न्यूज़ में था? तीसरा, रिसेंटली विच प्लेयर वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन? यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल भी बता दो मुझे साथ साथ। चौथा, क्लाइगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम, ये भी न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? पांचवा, वॉल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़, क्या है ये वॉल्ट टाइफून? तो दोस्तों ये है हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड उन सभी के लिए एक सजेशन कि अपने सभी फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को ये वीडियो शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.